So what are the happy hormones and how to hack them? Then exercise is the most powerful antidepressant in this whole world. Go to parks and you go to gaming zone, आपको वहाँ पे डोपामिन मिलेगा, अगर आप वो गेम खेल रहे हैं डोपामिन मिलेगा, लेकिन सेरोटोनिन कहाँ मिलेगा? व्हेन यू आर कंटिन्यूसली अंडर सम प्रेशर, यू आर कंटिन्यूसली chronically taking stress, this is when permanent damage to physical body starts happening, permanent damage to your mental health starts happening, क्योंकि इसके वजह से आपका hormonal imbalance होता है. So first of all always remember कि your body is in direct communication with you day in and day out. It is you who is not listening to your body. आपकी स्किन वैसे क्लियर थी लेकिन सडनली एक्ने ब्रेकआउट हो गए हैं, excessive consistent hair fall, so sudden weight gain, sudden weight loss, stubborn belly fat is one of the warning signs showing you hormonal imbalance. So I want you to know that belly fat is your cortisol hormone, that is the stress what is talking. आप कितना भी अच्छा खा लो, कितना भी अच्छा सो लो, लेकिन अगर स्ट्रेस लेना कम नहीं करोगे तो वो stubborn belly fat नहीं जाएगा. आपके लिए हैप्पीनेस के मायने क्या हैं? क्या है हैप्पीनेस की डेफिनेशन? कभी सोचा है? हर किसी को हैप्पीनेस अलग चीज़ से, अलग एक्सपीरियंस से मिलती है और कई लोग तो खुद अपने अंदर हैप्पीनेस ढूंढ निकालते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैप्पीनेस के स्टेट को, इस इमोशन को, इस फीलिंग को हैक किया जा सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस के बारे में तो आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर हर्षिनी जैन, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, साथ ही एक इंटीग्रेटिव हेल्थ कोच हैं और लाइफ कोच भी हैं. मेरा नाम है वीना सोनी. वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ H2O जिंदगी, जहां हम बात करते हैं कि कैसे आप एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी बिता सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हैप्पी सफ़र. A warm welcome, Dr. Harshini. So good to see you. Thank you so much for being part of H2O जिंदगी. Thank you so much. तो सबसे पहले तो यही, जो भी लोग आते हैं ना, मैं उनसे यही पूछती हूँ कि आप कितने हेल्दी हो, आप कितने हैप्पी हो? Very healthy and very happy. I think I'm in the most healthy state of my life ever, because I have been very unhealthy and a sick child as I grew up. So the only thing which motivated me to be an integrative health coach is that, you know, even the things what I have suffered, you know, low immune and lot of other stuff, that should not be with someone else. क्या बात है. तो आपकी पर्सनल स्टोरी तो जनरली जानना बनता ही है हमारा कि हाउ हैव यू बीन चाइल्ड जो कि हेल्दी नहीं था, क्योंकि अब आप होम्योपैथी डॉक्टर हो, इंटीग्रेटिव हेल्थ कोच हो, साथ ही लाइफ कोच भी हो. सो हाउ डिड योर जर्नी बिगिन? लाइक यू वर नॉट वेल, यू सेड यू वर सिक ऑल द टाइम्स. इज इट लाइक दैट? Yeah, I think in India anemia is very common, and a lot of girls, because of blood loss, anemia is always there. So low blood counts, and I was a very picky and a fussy eater. So not much good and strong on immune, but yeah, gradually along with the medical studies and everything, I became healthy, and today I understand what is the importance of health since your primary and early years of life, how much it affects in the later half. Right. That is what I want to preach to everyone. राइट. आप खुद तो समझते हो एंड डेफिनेटली यू आर प्रीचिंग टू अदर्स ऑल्सो. दैट्स हाउ यू आर हियर एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. आपको देख के हमें भी बहुत खुशी हो रही है. तो आज हम यही जानते हैं कि हम लोग हैप्पी हार्मोन्स की बहुत बात करते हैं, राइट? कि हैप्पीनेस हमारे हार्मोन्स से जुड़ी होती है. सो व्हाट आर दीज हार्मोन्स एंड हाउ डू दे कनेक्ट विद हैप्पीनेस? So first of all, if you're talking about hormones, I would say hormones are the chemical messengers of your body. Like, you know, they are produced by your endocrine system, pituitary and a lot of other organs which produce hormones. Now these chemicals mix into your bloodstream and they go to a particular tissue or organ, and this is when feelings come. आपको भूख लगी है, आप खुश हो, you are sad, you are anxious, you are sweating, आपको energy levels low लग रहे हैं, fatigue लग रहा है, आपको नींद आ रही है, जो भी आप फील करते हो वो हॉर्मोन्स की वजह से फील कर रहे हो. सो हॉर्मोन्स आर योर सिग्नल्स एंड योर मैसेंजर्स जो आपको फील करवाते हैं. देर आर मोर देन 50 हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी एंड देयर इज़ अ रिदमिक पैटर्न ऑन विच ऑल ऑफ देम वर्क. सो यू नो, हॉर्मोन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर योर हेल्थ. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस,
तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हार्मोन्स, सो फॉर मेंटेनिंग योर फिजिकल मेंटल हेल्थ एंड द बैलेंस बिटवीन इट. सो इट्स लाइक आपको पता कैसे चलता है कि आपको भूख लग रही है. सो ग्रेलिन इज़ द हार्मोन सिक्रीट होता है, आपको पता चलता है आपको भूख लगी है. आप खाना शुरू करते हो, यू फील सटाइटेड, तो लेप्टिन इज़ द हार्मोन, वो सिक्रीट होता है, आपको पता चलता है यू हैव टू स्टॉप ईटिंग. नींद आ रही है, आपको पता कैसे चलेगा, मेलेटोनिन इज़ द हार्मोन. सो जो भी आपके फीलिंग्स हैं वो हार्मोन से कनेक्टेड हैं. एंड व्हेन वी से हार्मोन्स, तो हमारी बॉडी बहुत ब्यूटीफुली बनाई है भगवान ने. सो आई थिंक द क्रिएटर इज़ रियली हैट्स ऑफ टू द क्रिएशन. सो जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है, तबला बज रहा है, गिटार है, हारमोनियम है, सब एक तालमेल में काम कर रहे हैं. लेकिन जब इस तालमेल में गड़बड़ होता है, दिस इज़ व्हेन आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है. So what are the happy hormones and how to hack them? The biohacks for happy hormones are like there are principally 4 happy hormones जैसे हम जानते हैं, डोपामीन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन. तो ये कैसे काम करता है, तो जब भी आप किसी को कुछ नया बिजनेस शुरू करते हुए देख रहे हो, या somebody who is working out really well, वो मैराथन में रन कर रहा है या जिम में वर्कआउट कर रहा है, यू फील उसको देख के wow yaar, he's doing so well and he's so fit, I can also do this, I can look this way. This is when dopamine comes into the picture, that instant joy what you feel. अभी तक आपने खुद ने कुछ किया नहीं है, but you are feeling that joy. This is the state of dopamine, right? So second is endorphin. Now जब आप regularly workout करना शुरू करते हो, you start showing up for your own self. This is when endorphins come into the picture. Now this high lasts for almost 4 to 5 hours. इसके लिए आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग वर्कआउट के लिए नया नया जाना शुरू करते हैं, उन्हें बहुत एनर्जेटिक फील होता है. दे फील वेरी गुड अबाउट देयर ओन सेल्फ, दे आर वेरी हैप्पी, स्किन इज ग्लोइंग. वाई? बिकॉज हैप्पी हार्मोन इज गेटिंग सिक्रेटेड, राइट? सो this is about endorphin. So now we come on serotonin, around which the entire world is revolving. This is the essential happy hormone which we all need to hack. So serotonin essentially produce होता है जब आप continuously like 3-4 वीक से ज़्यादा आपने वर्कआउट कर लिया है. That time serotonin comes into the picture. So when we say dopamine is the state of joy, endorphins is the state of pleasure, then serotonin is the antidepressant. So fourth one is oxytocin. अब ऑक्सीटोसिन पिक्चर में आता है आफ्टर 3 to 4 months, जब आपको इस चीज़ की आदत लग गई है. यू आर फीलिंग सो हैप्पी अबाउट योर ओन सेल्फ. दैट इज़ द फॉर्म ऑफ सेल्फ लव, दैट आई एम गुड इन वॉट आई एम डूइंग, आई एम स्टैंडिंग बाय माई सेल्फ फॉर दिस थॉट वॉट आई एम हैविंग टू वर्क आउट फॉर माई ओन हेल्थ. दिस इज़ व्हेन ऑक्सीटोसिन कम्स इन टू द पिक्चर. So when we are talking about exercise, then exercise is the most powerful antidepressant in this whole world. I repeat, exercise is the anti-aging and the most miracle thing any person can do, which works marvelously on your mental as well as physical health. लोग वीडियो गेम खेलकर डोपामिन रिलीज़ करते हैं, राइट? और अगर एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो एक साथ 4 केमिकल्स आपके बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि आपको हैप्पीनेस की किक देंगे, राइट? सो यू जस्ट हैव टू फाइंड कि आपको कौन से तरीके से ये केमिकल्स रिलीज़ करने हैं. सो आर देयर एनी अदर वेज जिससे कि हम हैप्पीनेस को हैक कर सकें? क्योंकि इट्स जस्ट अ स्टेट, राइट? यू कैन नॉट एक्चुअली डिफाइन हैप्पीनेस की कोई डेफिनेशन तो है नहीं, सबके लिए अलग अलग है. कोई किसी एक्सपीरियंस से जोड़ता है हैप्पीनेस को, कोई किसी इवेंट से जोड़ता है, कोई किसी इंसान से भी जोड़ देता है, भाई इस इंसान से मुझे हैप्पीनेस मिलती है. आपके लिए हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है? हाउ डू यू डिफाइन इट? बिकॉज ये तो साइंटिफिकली तो हमने बता ही दिया दैट व्हेन दीज केमिकल्स आर रिलीजिंग इन द बॉडी, विच मीन्स वी आर गेटिंग हैप्पी, राइट? वी गेटिंग दैट फीलिंग. तो वो जो स्टेट होती है, अंदर क्या चल रहा है वो तो कोई कुछ नहीं बता सकता. लाइक लैंग्वेज से हम लोग थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करते हैं कि या दैट वी आर फीलिंग हैप्पी. सो हाउ विल यू डिफाइन हैप्पीनेस? I think happiness essentially is something which is very natural, which is very instinctive. You don't need to work out something for that. आपको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान पे डिपेंड हो. वैसे हैप्पीनेस कभी नहीं हो सकती है. When you are in yourself in that state of joy and state of happiness, it will come automatically. आज everyone is dependent on something. मेरे पास गाड़ी आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, मैं अपना घर बना लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, या इंसान मुझे मिल जाएगा तो मैं उसके साथ खुश रह लूँगा. जबकि आई फील हैप्पीनेस इज़ समथिंग
समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन, जो आप खुद ही महसूस करो, यू आर इन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ, यू आर हैप्पी, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, यू आर हैप्पी, यू आर डोनेटिंग समथिंग, यू आर काइंडनेस, आई मीन देर आर सो मैनी थिंग्स जिससे आपको एसेंशियल हैप्पीनेस मिल सकती है. उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. यू नो, व्हेन वी वर अ चाइल्ड वी वर सो नेचुरल, हमें कुछ नहीं पता था कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो गिर जाएंगे, बट वी वर सो नेचुरल. आई थिंक जितना नेचुरल हम जिएंगे उतनी नेचुरल हैप्पीनेस हमारे पास हमें मिलेगी. एंड यू नो, स्टिकिंग टू मदर नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू गो टू पार्क्स एंड यू गो टू गेमिंग जोन, आपको वहाँ पे डोपामिन मिलेगा. अगर आप वो गेम खेल रहे हैं डोपामिन मिलेगा, लेकिन सेरोटोनिन कहाँ मिलेगा? जब आप नंगे पाँव वो पार्क में चलेंगे, दैट इज़ व्हेन आपको सेरोटोनिन मिलेगा. तो आई थिंक जितना हो सके अपनी मिट्टी से लगाव रखिए, नेचुरली हैप्पी रहिए, स्पेंड टाइम विथ ओल्ड पीपल, स्पेंड टाइम विथ योर किड्स, और यू नो स्पेंड टाइम विथ वॉट यू लाइक rather than sticking to material happiness. I think this is the definition of happiness for me. Yeah, stick to something that you like. आजकल तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि what do they like, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना. सी द मीडिया इज़ शोइंग अस कि आपको ये पसंद करना है. द मीडिया इज़ शोइंग अस कि हमें यू नो गेम्स खेल के डोपामिन मिल सकता है, या हमें फिल्म्स देख के डोपामिन मिल सकता है. सो वी हैव टू स्टार्ट प्रमोटिंग दैट, यू नो, मदर नेचर से जुड़ के भी आपको हैप्पीनेस मिल सकती है. और जो हैप्पीनेस विद इन की हम बात करते हैं, उसके लिए आपको खुद को जानना कितना ज़रूरी है ना, राइट? यू नीड टू नो व्हाट यू लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल. For a very long time, I remember that whatever my peers were doing, whatever my friends were doing, हम पे social pressure इतना ज़्यादा होता है that I was doing only what the society was telling me to do, without even understanding कि अंदर चल क्या रहा है, कि actually में आपको कुछ पसंद है या नहीं है, या आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हो. This is true for so many of people. आपको खुद को क्या करना है वो आपको पता ही नहीं है. ट्रेंड क्या है, पीयर प्रेशर जैसे आप बोल रहे हो, वो क्या कर रहा है, क्या समाज के अकॉर्डिंग टू अच्छा है सबके लिए, मेरे लिए, लेकिन आप खुद क्या करना चाहते हो वो कितना इम्पोर्टेंट. राइट, एंड दैट यू गेट टू नो व्हेन यू स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ. लेकिन स्ट्रेस भी इतना है ना, बिकॉज देयर इज़ हसल कल्चर गोइंग ऑन. अगर आप देखें सोसाइटी में, यू हैव टू कीप डूइंग समथिंग, आपको हर वक्त प्रोडक्टिव होना. और जैसा आपने कहा कि अगर आप किसी को देखते हो कि उनकी हेल्थ कितनी अच्छी है, अ लॉट ऑफ टाइम कंपैरिजन कम्स इन टू पिक्चर, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? और स्ट्रेस के भी हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी में रिलीज होते हैं. सो इफ़ यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट दैट. यस, स्ट्रेस इज़ बिकम इनएविटेबल नाउ. हर बात में स्ट्रेस है. आई थिंक यू नो, वो IV ड्रिप होता है जो हम लगाते हैं हॉस्पिटल में, आज स्ट्रेस वैसा हो गया है. हम एवरी मिनट वी आर टेकिंग स्ट्रेस, और हम स्ट्रेस लेने से इतने हैबिचुअल हो गए हैं दैट हमें बिना स्ट्रेस के रहना ही नहीं आता. हर छोटी बात पे हमें स्ट्रेस लेने की आदत पड़ गई है. सो यू नो, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, the one essential hormone we don't fail to talk about is cortisol. So cortisol is the first stress hormone, right, जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिएक्शन बोलते हैं, लड़ो या मरो. जैसे ही आपको स्ट्रेस होता है कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू कर देता है, यू नो. एंड देन यू नो वैसोप्रेसिन, जैसे हम कहते हैं, एड्रेनालिन एंड अदर स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं. नाउ व्हेन यू आर कंटिन्यूसली अंडर सम प्रेशर, यू आर कंटिन्यूसली chronically taking stress, this is when permanent damage to physical body starts happening, permanent damage to your mental health starts happening. क्योंकि इसके वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. जिस ऑर्केस्ट्रा की हम बात कर रहे थे, आपके बॉडी का जो रिदम है वो ब्रेक होना शुरू कर देता है, एंड लेटर ऑन यू स्टार्ट गेटिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, hormonal imbalances. Right, so maybe we'll talk a little bit, we'll just expand this hormonal imbalance for our viewers, कि आखिरकार hormonal imbalance कितना इम्पैक्ट डालता है आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, और आपकी ओवरऑल बीइंग के ऊपर. आई थिंक जैसे हमने बात किया, हॉर्मोन्स आर द बेसिक थिंग्स जिससे आप क्या फील करते हो आपको पता चलता है, राइट? अब ये हार्मोन जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आप बताएंगे पता कैसे चले कि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस्ड हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर कि योर बॉडी इज़ इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ यू डे इन एंड डे आउट. इट इज़ यू हु इज़ नॉट लिसनिंग टू योर बॉडी. सो बॉडी सिग्नल्स यू फ्रॉम डे वन. जैसे ही वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, इट कम्स आउट. सो व्हाट आर द सिग्नल्स जिससे आपको पता चले कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं? सो इट इज़ लाइक यू नो, सडन एक्ने ब्रेकआउट. आपकी स्किन वैसे क्लियर थी लेकिन सडनली एक्ने ब्रेकआउट हो गए हैं. एक्सेसिव कंसिस्टेंट हेयर फॉल, 3 से 4 महीने के अंदर आपके क्वाइट सम हेयर फॉल हो गए हैं. सडन वेट गेन. जब आप किसी को काफ़ी टाइम के बाद मिलते हो, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नोटिस?
तूने बहुत वेट गेन कर लिया इतने शॉर्ट टाइम में, या इतने शॉर्ट टाइम में तू इतना पतला कैसे हो गया, विच इज़ एबनॉर्मल. इफ इट इज़ कंसिस्टेंट वेट लॉस वॉट यू अ पर्सन हैज़ डन फॉर देयर हेल्थ, दैट इज़ डिफरेंट. सो सडन वेट गेन, sudden weight loss, stubborn belly fat is one of the warning signs showing you hormonal imbalance. I would when we're talking about cortisol or stubborn belly fat, weight loss के clients जब हमारे पास आते हैं and when they talk कि हमने सब कुछ कर लिया, हम योग कर रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम अच्छा क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, हमारा डीप स्लीप है, लेकिन ये बेली फैट क्यों नहीं जा रहा है. So I want you to know that belly fat is your cortisol hormone. That is the stress what is talking. आप कितना भी अच्छा खा लो, कितना भी अच्छा सो लो, लेकिन अगर स्ट्रेस लेना कम नहीं करोगे तो वो stubborn belly fat नहीं जाएगा. Now why it is that? Cortisol hormone, when you are constantly under stress, it start thinking that your body is under starvation. सो स्टार्वेशन मोड में है तो वो फैट बेली पे स्टोर करना शुरू करता है ये सोच के दैट द बॉडी विल नीड इट. बॉडी तो वो नीड करता नहीं है, तो वो स्टबन बेली फैट स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग, और वो जब तक आप स्ट्रेस रिलीज़ नहीं करोगे तब तक वो नहीं घटने वाला है. सो हाउ ब्यूटिफुली आपका फिजिकल फैट अक्यूमुलेशन आपके मेंटल स्ट्रेस से कनेक्टेड है. सो हाउ ब्यूटिफुली योर माइंड एंड बॉडी इज़ कनेक्टेड. राइट, इट्स सो मच. लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि माइंड एंड बॉडी इज़ सो मच कनेक्टेड, कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपकी वेट लॉस का रीज़न भी हो सकता है, या फिर वेट लॉस नहीं हो रहा है उसका रीज़न भी हो सकता है. एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद वेट लॉस बाय कम चपाती खा लेता हूँ, कम खाना खा लेता हूँ, यहाँ मीठा कम कर लेता हूँ. और टू टेल यू द ट्रूथ, मैं सब कुछ खाती हूँ. सीरियसली, मैं लोगों को यही बोलती हूँ. लोग मुझे कहते हैं आप इतने पतले कैसे हो, क्या आप ये नहीं खाते वो नहीं खाते. मैं कहती हूँ मैं सब कुछ खाती हूँ, बट एज यू मैंशन, राइटली मैंशन, कि स्ट्रेस मैनेज करना सबसे बड़ी चीज़ है. एंड एक दो चीज़ें मीठा मीठा खा भी लिया आपने, कुछ नहीं होता. ऑफ कोर्स वी डोंट ईट एवरी डे, वी डोंट ईट स्वीट्स एवरी डे, बट व्हेनेवर यू ईटिंग जस्ट एंजॉय दैट गुलाब जामुन यार, एंजॉय दैट जलेबी. Why not? And I think today the condition after social media and internet is आपको शुगर नहीं खाना, आपको माल्टोडेक्सिन नहीं खाना है, आपको फैट नहीं खाना है, आपको जंक फूड नहीं खाना, इन्फ्लेमेटरी नहीं खाना, ग्लूटीन नहीं खाना, रोटी बंद कर दीजिए. आपको प्रोटीन चाहिए, आपको मिलेट्स चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए, आपको डीप स्लीप चाहिए. यू हैव सो मैनी थिंग्स बट यू आर फॉरगेटिंग दैट योर ओवरऑल हेल्थ इज़ गुड फूड, गुड स्लीप, लेस ऑफ मेंटल स्ट्रेस, अच्छा फिजिकल व्यायाम. जब ये सब चीज़ होगा दैट इज़ व्हेन इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट. क्यों वीट नहीं खाना है, क्यों देयर इज़ सच अ फस अराउंड ग्लूटीन. आप मिलेट्स लीजिए, मिलेट्स आर वेरी गुड. वीट भी खाइए, मिठाई भी खाइए. अगर हैप्पी हार्मोन्स नहीं सीक्रेट होंगे तो वेट लॉस एनीवे नहीं होने वाला है. एंड आई हैव क्लाइंट्स हु टॉक टू मी कि क्या गर्म पानी पीने से, सुबह में उठ के गर्म पानी पीने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा. आई ऑलवेज टेल देम, सुबह में उठ के गर्म पानी, वाई आई टेल टू माई पेशेंट इज़, जब आप गर्म पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है. ओल्ड एंड डाइजेस्टेड फूड जो आपके गट में है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच इन टर्न आपका वेट लॉस होता है. बट वॉट पीपल थिंक इज़ सुबह में गर्म पानी पियेंगे वेट लॉस हो जाएगा. नो, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. सेकेंड मिथ इज़ मुझे वड़ा पाव नहीं खाना, मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना, मुझे वो गुलाब जामुन नहीं खाना, मुझे वेट लॉस करना है क्योंकि 6 महीने के बाद शादी है. नो, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. एक वड़ा पाव या एक पिज़्ज़ा खा लेने से आपका वो फैट गेन नहीं होने वाला है, या फैट गेन होगा बट उसके बदले आप जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना हार्मोन इम्बैलेंस करेंगे, उसके बारे में एक ओवरऑल इंटीग्रेटिव अप्रोच नहीं है. राइट, एब्सोल्युटली. क्योंकि अगर स्ट्रेस में ही आप ये सब कर रहे हैं तो अगेन वो बॉडी माइंड कनेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, कि आपका माइंड तो आपको इतने ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स दे रहा है कि आप चाहकर भी शायद लूज़ नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे भी इट विल बी वेरी टेम्पररी, इट वॉन्ट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. सी, टुडे इट इज़ द टाइम ऑफ डूइंग सस्टेनेबल थिंग्स. आप अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, आपसे जितना फिजिकल व्यायाम होता है ना आप उतना ही कीजिए. हाउ मच एवर यू कैन डू, कीप इट सस्टेनेबल. जैसे कि आपको पता है लॉट ऑफ पीपल गो टू क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डायटिशियंस, एंड व्हाट हैपेंस इज आई थिंक द न्यूट्रिशनिस्ट आर डूइंग अ वेरी वेल जॉब, राइट. बट प्रॉब्लम क्या होता है, द क्लाइंट इज़ नॉट एबल टू टेक इट टिल अ लॉन्ग वे, 3 months 4 months and then it's done. Why? Because the clients are not doing it sustainable. And why do you want to do it with a willpower thing? आप विल पावर से कितना खुद को कंट्रोल करोगे, मिठाई से या इन्फ्लेमेटरी फूड से. ट्राई टू डू इट इन अ सस्टेनेबल वे. Right, so that it becomes your lifestyle. Yeah. It becomes part of your life forever, not and just for a limited period of time. So important what you said, make it a lifestyle.
फॉर लाइफ लॉन्ग. वाई यू वॉन्ट टू डू इट फॉर अ टेम्पररी पर्पज? सो येस, एब्सोल्युटली. अगर वो सस्टेनेबल नहीं होगा तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन. जहाँ से हमने शुरू किया था वही हम वापस पहुँच जाते हैं. अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि वेट लॉस जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी नहीं हो पाता है. कई लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंसेस है जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं हो पा रहा है. तो व्हाट आर द मेजर हार्मोनल इम्बैलेंसेस? सो वेट लॉस ना होने का रीज़न हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ 100% ट्रू. क्योंकि अगर हार्मोन इम्बैलेंस्ड है, अगर आपकी गट इम्बैलेंस्ड है, तो गट नेचुरल वे में काम नहीं कर रही है. व्हेन वी टॉक अबाउट हार्मोन्स एंड व्हेन टॉक अबाउट हेल्थ, 80% ऑफ योर इम्यूनिटी इज़ इन योर गट एंड डीप हार्मोन सिंथेसिस एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर गट. So the main reason behind this is that your gut is impaired. Now impaired gut is because of having leaky gut. So what is leaky gut? So हमारी gut की जो lining होती है वो permeable होती है, but in case of leaky gut वो ज़्यादा permeability increases because of which the nutrients, the toxins, the old digested या undigested food start releasing in your bloodstream, making your gut leaky. इसके वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाता है. सो यहाँ पे गट इम्पेयरमेंट है, इसके लिए वो हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करेगा. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर लीकी गट इज़ chronic stress, number 1, again mental health, number 2 chronic diseases and exposure to free radicals for a chronic period of time. आपने बहुत सारी दवाइयाँ जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बहुत ली हैं इन अर्ली ईयर्स ऑफ योर लाइफ, तो ऑब्वियसली योर गट विल गेट इम्पेयर्ड आफ्टर कमिंग टू अ सर्टेन फेज. इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, लीडिंग इन टू अ लीकी गट थिंग. अब ये लीकी गट हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है. दिस इज़ वेयर योर हार्मोन्स गेट इम्बैलेंस्ड. इसीलिए आपने नोटिस किया होगा 80% ऑफ PCOS पेशेंट को ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म होता ही है. ओके. So it is all connected, and when we are talking about, PCOS or hypothyroid, when we are talking about women's health, people think, we don't need, a woman doesn't need testosterone at all. Testosterone is only needed by men. But it is like even woman needs testosterone. We only talk about estrogen and progesterone. Now what happens is when you are constantly exposed to inflammatory thing, stress and free radicals, what happens is we sacrifice the progesterone and testosterone, and what is left with us is tons of estrogen, and this tons of estrogen leads to estrogen dominance, जिसकी वजह से आपको इतने सारे hormonal imbalance होते हैं, hirsutism, acne breakouts and lot of other hormonal issues start happening, which is very common nowadays in women. So it is not that testosterone is only needed by men, even women need it. राइट. तो किया क्या जाए आखिरकार, बिकॉज स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स एक मेजर चीज़ निकल कर आ रही है यहाँ पर कि स्ट्रेस को डील करना तो बहुत ही ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स अ फ्यू मोर थिंग्स दैट यू मेंशन अबाउट एंटीबायोटिक, कि जो हम सोचते हैं ना कि बुखार हो गया, चलो अब एक पिल पॉपअप करो, चलो ठीक हो जाएंगे फटाफट से. ये 2-3 तो मेजर चीज़ें हैं. इफ़ आई आस्क यू अबाउट हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस, या बिकॉज it's something जिससे बचा नहीं जा सकता है. Stress is going to be there. We just have to come back again to the center. So what do you do personally? आई थिंक स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए द बेस्ट थिंग इज़, अगर आप एवरी डे एक रूटीन बना लेते हैं, योर बॉडी लव्स रूटीन. सो इफ़ यू आर गोइंग इन टू अ हेल्दी वर्कआउट, सस्टेनेबल वर्कआउट इन द मॉर्निंग, इट इज़ गोइंग टू फ्लश योर बॉडी विथ हैप्पी हार्मोन्स, जिससे आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल्स, आपका फटीग दूर चला जाएगा, आप अपना दिन अच्छे से प्रोडक्टिव वे में मैनेज कर पाएंगे. स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है? मिसमैनेजमेंट. स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि आप वो चीज़ भूल गए. अरे मैं वो भूल गया करने के लिए, तब आपको स्ट्रेस आ जाता है. बट व्हेन यू आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, दैट विल टेक आउट ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ. और वेल ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. व्हेन वी से व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, लाइक somebody is into swimming, tennis और बैडमिंटन, लॉट ऑफ सच एक्टिविटीज़, आप योग करते हैं, नॉर्मल अच्छे वर्कआउट्स करते हैं, ये आपको एक ओवरऑल रिदमिक वे में काम करने की कोशिश करता है. And when you're talking about hormonal imbalances at all, तो I think it goes like how to biohack hormones. तो उसके लिए 4 चीज़ें हैं जो आपको करनी है टू बायोहैक योर हार्मोन्स. सो सबसे फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन. हैक योर न्यूट्रिशन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, वी ऑलवेज से देयर आर 5 fingers. सो फर्स्ट इज़ योर एनर्जी गिवर्स, दैट आर योर कार्ब्स. टेक गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स. आप ये सोचते हो मुझे वेट लॉस करना है, आपने कार्ब ही निकाल दिया,
एनर्जी ही नहीं रहेगी, आप इतना फटीग महसूस करोगे, वो वेट लॉस जर्नी के बदले वो आप पानी में बैठ जाओगे, आप आगे ही नहीं कर पाओगे. सो टेक गुड कार्ब्स, यू कैन टेक wheat, you can take millets, you can take good carbs in your in your plate. Secondly, most important is protein. As we whenever we talk about protein, इंडिया में प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, मेनली वेजिटेरियन लोगों को ज़्यादा सोर्सेज नहीं मिलता है. सो टेक गुड क्वालिटी प्रोटीन. वी हैव लॉट्स ऑफ नेचुरल प्रोटीन अवेलेबल. थर्ड इज़ फाइबर एंड विटामिन एंड मिनरल्स. जो ब्रदर एंड सिस्टर हम बात करते हैं, अच्छे अमाउंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड दीजिए. योर गट लव्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आप वो जितना लेंगे ऑटोमेटिक आपको क्रेविंग कम होगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गुड फैट. स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपको उसको नेचुरल वे में क्योर करना है तो 2 थिंग्स आर प्री रिक्विजिट. वन इज़ गुड फैट एंड वन इज़ लेस स्ट्रेस. ओके, अब स्ट्रेस कैसे कम करना है हमने बात कर लिया. व्हेन वी टॉक अबाउट गुड फैट, व्हाट आर द गुड फैट्स यू कैन टेक जिससे आपके हार्मोन वापस रिस्टोर हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ घी. घी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गुड फैट यू कैन टेक. स्पेशली अगर आप अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप ले रहे हैं, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ट्राई करेगा. Other sources for good fats are, avocado, your nuts, seeds and pulses, lentils, lot of things. Coconut oil is very good fat. उसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होता है जो हार्मोन्स को भी अच्छे से बैलेंस करता है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा. So biohacking hormone, first is nutrition, second is sleep. Go for a deep good sleep for 7 to 8 hours because deep sleep में peak hormone creation होता है, आपका gut regenerate repair होता है. So don't forget to sleep well. Third is your mental health is very important. Start taking care of your own self. Practice self love, gratitude and affirmations. They are the major thing जो आपका stress release करेंगे. सो फोर्थ इज़ एक्सरसाइज. जो भी फॉर्म में आपको व्यायाम अच्छा लगता है, यू लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, गो फॉर इट. यू लाइक वॉकिंग, रनिंग, वर्किंग आउट, आई थिंक दैट विल हेल्प यू टू बायो हैक योर हार्मोन्स नेचुरली. यू स्पोक अबाउट न्यूट्रिशन और इतने सारे ऑप्शंस भी दे दिए गुड फैट के. अगर हम बात करें सुपर फूड्स की, क्योंकि आजकल सुपर फूड्स बहुत ट्रेंड में है, हर कोई सुपर फूड की बात कर रहा है, तो व्हाट आर सुपर फूड्स और आप कौन से रेकमेंड करते हो? So when we talk about superfoods are the food which has very high nutrient density value. Simple है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, बट where it is going wrong is आपको लगता है कि आप वो सुपरफूड ले लेंगे एंड योर हेल्थ विल बी कम्प्लीटली फाइन, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, देन इट इज़ रॉन्ग. मैंने आज पम्पकिन सीड्स खा ली तो माई माई हार्मोन्स आर वेल. मैं एवरीडे नट्स खा रहा हूँ तो माई हेल्थ विल बी फाइन. दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. इट शुड बी एन ओवरऑल इंटीग्रेटिव approach when we talk about superfoods. And secondly, the myth which I feel every client has, whenever I tell them and I talk about superfoods, the first thing coming into their mind is only fancy stuff. Like आप superfoods बोल रहे हो तो avocado, chia seeds, this is only it will come into our mind. Now the problem is all these ingredients have been marketed well by the western countries a lot. इसीलिए जैसे ही हम ये बोलते हैं ना, तो आपके दिमाग में superfoods के नाम पे avocado और chia seeds ही आएगा. Whereas our Indian kitchen has lots of superfood which can have a very beneficial effect. Secondly, when we talk about superfoods, there are no superfoods or magical drinks which will do miracles to you. You have to take them in a proper way. जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हो कि चिया सीड्स खाना बहुत अच्छा है, तो यू लोड योर वाटर विद चिया सीड्स, यू कीप ऑन टेकिंग देम, बट इट इज़ गोइंग कम्प्लीटली रॉन्ग. हर चीज़ प्रॉपर मात्रा में ही अच्छी है. राइट, एंड दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द प्रोफेशनल, क्योंकि वही आपको सही गाइड कर सकते हैं कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है. आप अलग हैं भाई, हर इंसान हर किसी से अलग है. बायो इंडिविजुअलिटी, वी शुड नेवर फॉरगेट. व्हाट सूट्स यू won't suit me. राइट, सो इंस्टाग्राम पे देखकर ऑफ कोर्स यू कैन हैव सम नॉलेज अबाउट इट डेफिनेटली, बट यू कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली इम्बाइब एवरीथिंग दैट इज़ बीइंग शोन टू यू. या नाउ यू स्पोक अबाउट कि इंडिया में भी बहुत सारे सुपर फूड्स हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 3 इंडियन सुपर फूड जो कि हमारी किचन में होने ही होने चाहिए, तो वो कौन से होंगे? इट इज़ रियली टफ. आवर किचन इज़ फिल्ड विद सुपर फूड्स, आई थिंक. फिर भी अगर 3 हमें आइडेंटिफाई करने हो. आई थिंक आई विल गो विथ आमला. It's rich in vitamin C, very good for your health. Number 2, I would say turmeric,
curcumin present in the turmeric is the most powerful anti-inflammatory and antiseptic we have in our kitchen. And third will be 100% moringa. एकदम सिंपल चीज़ है. ड्रमस्टिक लीव्स आपको 10 रुपीज़ में पूरा बंच मिल जाएगा. वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वी ऑल नो व्हाट आर द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड मोरिंगा एज वेल. राइट, सो स्टार्ट यूजिंग देम. और ऐसा नहीं है कि मैजिक हो जाएगा कुछ, बट दीज आर द थिंग्स दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग सम बैलेंस इन योर डाइट एंड इन योर हार्मोन्स एज वेल. Exactly, and when you want to have superfoods, take into account your weather conditions. अब कैसा होता है कि if I have 2 clients, ओके, चिया सीड्स की तासीर है जो वो बहुत गर्म है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी की तासीर क्या है, आपकी वेदर कंडीशंस क्या है. तो उसको आपको उसका राइट इफेक्ट मिले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. योर बॉडी टाइप, द डिसऑर्डर, अंडरलाइंग हार्मोनल डिसऑर्डर जो आपको है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रोकली इज़ अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, बट अगर आपको थायराइड है तो यू हैव टू टेक केयर इन वॉट फॉर्म्स, हाउ मच. इट इज़ नॉट कि आप ब्रोकली नहीं खा सकते या कैबेज नहीं खा सकते, बट there are certain things which we tell our clients to take care of. Right. So have it in a proper way according to the weather condition and according to what suits you. I think anything, any superfood, any magical drinks or detox waters, whatever you talk about, you have to try it for 21 days. Give a time to your body. तभी आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा. आपको पता चलता है कि ऑलिव सीड्स लेने के बाद मुझे थोड़ा सा इफेक्ट लग रहा है, गर्मी लग रही है, तो उसका मात्रा कम कर दीजिए. यू हैव टू बी माइंडफुल. राइट, एंड यू मैंशनड अबाउट चिया सीड्स सो मेनी टाइम्स, तो अभी मुझे आपको ये पूछना ही पड़ेगा कि चिया सीड्स और सब्जा सीड्स, क्योंकि इंडियन वर्जन ऑफ चिया सीड्स कहते हैं कि सब्जा सीड्स होते हैं. दिस इज़ द कॉमनेस्ट क्वेश्चन आई थिंक एवरीवन इज आस्किंग अराउंड. गिवन मी एन ऑप्शन, आई वुड ऑलवेज से सब्जा, बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस. हमारी बॉडी को क्या सूट करता है वो चीज़ हमारे पास ग्रो करता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियली इफेक्ट करेगा. सो आई वुड से सब्जा, बट मेरी बॉडी की तासीर के अकॉर्डिंग टू सब्जा इज़ गुड फॉर मी. मे बी फॉर यू चिया सीड विल बी गुड. चिया सीड इज़ नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर फूड वी हैव, रिच इन ओमेगा 3, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए वेरी गुड. सो चिया सीड्स आर वेरी गुड, बट यू शुड सोक देम वेरी वेल. ड्राइनेस बहुत होता है उससे, अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो आपकी इंटेस्टाइन्स को ड्राई कर देगा, आपको कॉन्स्टिपेटेड और ब्लोटेड कर देगा. तो एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लीजिए, उसको अच्छा सोक कीजिए, सो इट वर्क्स एंड गिव्स यू द बेस्ट बेनिफिट. Right, and that's why it's important again and again I mention it, that it's very important that you connect with a professional who can guide you. And of course we will be leaving the contact details of Dr. Harshini below in the description box. आप चाहें तो उन्हें contact कर सकते हैं, because yes, information is not bad, information is good in fact, कि आपको पता है कि क्या सुपर फूड्स हैं और क्या मार्केट में अवेलेबल है, so that at least when you go to the market your attention goes towards that. but आपके लिए क्या क्वांटिटी सही है, ओनली अ प्रोफेशनल कैन टेल. अच्छा डॉक्टर हर्षिनी, ये बताइए मुझे कि जो सुपर फूड की अब हम बात कर ही रहे हैं, तो क्या सुपर फूड जो है आपकी मेमोरी को शार्पन करने में किसी तरह से हेल्प करते हैं? क्योंकि आजकल ना ये होता है ना, ये कुछ रख दिया कहीं भूल गए, या कुछ करने गए रूम में और भूल गए कि क्यों आए थे, या किचन में कुछ लेने गए और भूल गए कि क्यों आए थे. तो आर सुपर फूड बेनिफिशियल फॉर मेमोरी गेन एज वेल? 100%. I think there are a lot of brain superfoods and quite trending है ये Instagram पे. So brain superfoods are foods which are rich in tryptophans. हमारे जो नट्स हो गए, वॉलनट एंड पिस्ताचियो, आमंड्स, दे आर वेरी गुड, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू सोक द नट्स बिफोर हैविंग देम, क्योंकि भारत एक गर्म देश है और हम सबकी तासीर थोड़ी सी गर्म है, तो नट्स आपको गर्म पड़ेंगे. तो अगर आप सोक्ड वे में लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपको गर्म भी नहीं पड़ेंगे. ऑल्सो फूड रिच इन पॉलीफिनॉल्स लाइक ग्रीन टी एंड ऑब्वियसली फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, जो चारों हमारी सीड्स है विच आर वेरी मच रिच इन ओमेगा 3. There is a big yes for them. Pumpkin seeds, sunflower seeds, sesame and flax seeds. And obviously fiber rich food, हमारे colored fruits and vegetables जो हैं, seasonal fruits and vegetables हैं, जो basically बहुत common है लेकिन हम सब वो खाना भूल गए हैं. So try to indulge more into healthy and a clean eating. सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपकी मेमोरी बूस्ट करने में भी आपको हेल्प कर सकते हैं. एंड आई थिंक बहुत कुछ आपने हमें आज वैल्यू दी है. राइट नाउ यू लेट मी नो कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम कुछ जानते हैं. यू आर अ होम्योपैथिक डॉक्टर, राइट? और होम्योपैथी से आपने इंटीग्रेटिव हेल्थ कोच की तरफ
अपना कदम रखा और एक लाइफ कोच भी हैं आप साथ में, तो हाउ डिड दिस इंटीग्रेशन हैपन? So basically, in homeopathy, we always believe that mind and body is one. Your physical health is not an object which needs to be treated. This is what homeopathy surrounds. इसके लिए हमारे लिए mental symptoms, mental health पहले से ही बहुत important रही है, and we give utmost importance to what the person feels. Okay, along with the physical symptoms. And I think during COVID lockdown, a lot of people had anxiety, depression, बाहर नहीं जा पाते थे, and lot of people were into that anxious and depressive phase. And वहाँ पे life coaching accidentally came to me, and I thought that along with my homeopathy practice, if I can coach people to motivate them to get them out from that anxiety and depressive phase along with homeopathy, that will be very beneficial for my clients. And as we always say, mind, body, soul, it's all connected. So integrative health approach is what is needed in today's time. आपका mental health, आपका physical health, everything is correlated. This is what I believe. एब्सोल्युटली, क्योंकि सिर्फ अच्छा खाने से नहीं होगा, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा, यू हैव टू वर्क इंटायरली, जैसा हमने बोला शुरू से कि माइंड एंड बॉडी कनेक्शन पे, तभी आपकी ओवरऑल वेल बीइंग क्रिएट हो सकती है. एंड आई एम श्योर योर क्लाइंट्स आर गेटिंग द बेनिफिट. वी ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट, वी ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू टुडे फ्रॉम वॉट यू शेयर्ड. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग हियर ऑन दिस शो. Thank you so much. उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, क्योंकि कई सारी वैल्यू हमने इस एपिसोड में पैक करने की आपके लिए कोशिश की है. तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि हम कुछ काम कर पा रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ला पा रहे हैं, उससे ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम बना पा रहे हैं. और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी हम एक नया एपिसोड अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. Thank you so much for watching.